then I discussed the charge. The question was there कि how many types of colloidal solution on the basis of charge. On the basis of charge, colloidal solution are of two types: positive charged colloidal solution and negative charged colloidal solution. Then the question was there कि in colloidal solution dp and dm both are present, then charge is depend on which part of colloidal solution. Then charge is depend on the colloidal particle, that is dp. If dp is positive, then charge is positive. If dp will be negative, then charge will be negative. dp पे जो चार्ज होता है वही कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ज होता है, दैट आई इन्फॉर्म यू. देन आई हैव टोल्ड यू कि आपको ये जो टेबल दिया हुआ है इन योर एनसीईआरटी, इसको आपको याद करना है. फ्रॉम दिस टेबल एनीथिंग कैन बी आस्क्ड एज एन एग्जांपल. देन आफ्टर द नेक्स्ट वाज देयर कि व्हाट इज द रीजन फॉर चार्ज. चार्ज का रीजन क्या है, व्हाई द चार्ज इज प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन. सो for this different scientists have given different reason, but two reason is given in your ncrt book. First one is the colloidal particles are accepting the electron, so it is written due to electron capture by Sol particle during electrodispersion of metal. Means कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि during formation of colloidal solution the dp particles are capture electron from metals. Then फिर लॉजिक ये आया कि ओके देन इन दिस केस ऑल द कोलाइडल सॉल्यूशन मस्ट बी निगेटिव. हाउ दे गेट द पॉजिटिव चार्ज, उन पे पॉजिटिव कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हैं तो दे मस्ट बी निगेटिव. देन कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए और फाइनली एक और रीजन सामने आया, दैट इज ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन. सी द वर्ड due to preferential adsorption of ion. Preferential means it is preferred. the condition की कंडीशन क्या है उस पे ये डिपेंड कर रहा है कौन सा प्रोसेस, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस, और किसका एडजॉर्प्शन होगा, आयन का. सो आयंस आप जानते हो, आयंस आर ऑफ ओनली टू टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव. सो इट is preferential adsorption of any one type of ion on dp. मीन्स ये कहा गया कि dp पार्टिकल के पास दो आयन प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन में. आउट ऑफ दीज टू dp पार्टिकल इज चूजिंग कि कौन सा आयन उस पर एड्जॉर्ब होगा टू गिव द चार्ज. नाउ द आउट ऑफ द above two reason, the most acceptable and most explainable reason is preferential adsorption. So if the question will be there, what is the reason for charge on colloidal particle, then your answer must be there, preferential adsorption of ion. ये adsorption किस पर होता है, dp पर. dp पार्टिकल के सरफेस पे आयंस आके एडजॉर्ब होते हैं. इफ the ion which will be adsorbed that will be positive, then colloidal solution will be positive. If ion that will be adsorbed that will be negative, then colloidal solution will be negative. Now is there any theory behind this? So इसको समझने के लिए we will see the, ठीक है, we will see the experiment. So here are two examples of preferential adsorption. You can see here A number and B number. Two example is given in your NCERT book and question can come from here. Question यहाँ से भी आ सकता है और आता भी है, ठीक है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन को प्रूफ करने के लिए दिया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज देयर कि व्हेन, ध्यान से समझिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आउट ऑफ दिस टू. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 is added in Ki. AgNO3 को Ki में ऐड कर रहे हैं, सीधा एरो, AgNO3 is added in Ki, then it form AgI colloidal solution. ये AgI colloidal solution बना रहा है. and when Ki को, जो लिखा हुआ वो मैं बता रहा हूँ, when Ki को AgNO3 में ऐड कर रहे हैं, AgNO3, तब भी ये AgI colloidal solution बना रहा है, silver iodide. Means when AgNO3 is added in Ki, then it forms silver iodide colloidal solution, and when Ki added in AgNO3, then also it forms silver iodide colloidal solution. But the difference was there, दोनों silver iodide ही बना, yes, ये तो सही है, but difference was there
कि जो सिल्वर आयोडाइड इससे बना था दैट इज निगेटिव चार्ज। जब इसके चार्ज को आइडेंटिफाई किया तो निगेटिव था, और जब इसके चार्ज को आइडेंटिफाई किया तो पॉजिटिव था। तो क्वेश्चन ये बना कि व्हेन AgNO3 is added in Ki, potassium iodide, then it give the negative charged silver iodide solution. But when Ki is added in AgNO3, then it give the positive charged silver iodide solution. How or why? ठीक है, मीन्स AgNO3 को Ki में मिला या Ki को AgNO3 में मिला है, तो बनना तो सेम चाहिए। तो ये तो सही है कि बोथ आर गिविंग द सेम प्रोडक्ट, silver iodide, but the charge are difference. The charge is difference due to preferential adsorption. अब कैसे ये हुआ, that we need to check. अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ. Now see how it is going to take place. So see here, when first case AgNO3 is going to be added in Ki, तो इस केस में AgNO3 इज DP या अभी तो DPDM नहीं है, सॉल्यूट सॉल्वेंट है। DPDM तो अभी जब कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा तब होगा। सो इन दिस केस AgNO3 इज जस्ट लाइक द सॉल्यूट एंड Ki इज द सॉल्वेंट। सो आउट ऑफ दीज टू, एज यू नो, सॉल्वेंट विल बी इन मोर अमाउंट। तो सिंपल सी बात है, Ki का अमाउंट ज़्यादा होगा और Ag का अमाउंट कम होगा। सो इन दिस अगर हम ले लेते हैं कि 50 पार्टिकल इज ऑफ AgNO3 एंड मे बी 60 पार्टिकल और 70 पार्टिकल इज ऑफ Ki। Ki का 70 पार्टिकल है, इसका 50 पार्टिकल है, ठीक है। सो अब 50 पार्टिकल ऑफ AgNO3 विल रिएक्ट विथ 50 पार्टिकल ऑफ Ki। लिमिटिंग रिएजेंट आपने पढ़ा है क्लास 11th में। सो लिमिटिंग रिएजेंट विल बी हियर AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो जितना AgNO3 है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। सो 50 पार्टिकल ऑफ AgNO3 रिएक्ट विथ 50 पार्टिकल ऑफ Ki। सो बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट फॉर्म 50 पार्टिकल ऑफ AgI एंड 50 पार्टिकल ऑफ KNO3। ये AgI और KNO3 50-50 पार्टिकल बनाएगा। ओके, सो दिस AgNO3 विल बी completely over, but Ki is 20 left. Ki 20 बचेगा। That Ki will be broken down into 20K plus and 20I minus। अब इससे 20 पोटेशियम आयन एंड 20 आयोडाइड आयन प्रेजेंट होगा वहाँ पे उस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो आपका रिएक्शन के बाद बना सिल्वर आयोडाइड, ये DP हो गया, KNO3 ये DM हो गया, और इसमें ये आयन प्रेजेंट है K प्लस एंड I माइनस। सो दैट DP सिल्वर आयोडाइड विल बी चूज एनी वन टाइप ऑफ आयन फ्रॉम दीज टू, जो उस समय प्रेजेंट है वो उसमें से चूज करेगा। सो आउट ऑफ K प्लस एंड I माइनस, बिकॉज एडजॉर्प्शन होने जा रहा है। एडजॉर्प्शन मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी सेटल डाउन, मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो स्टेबल कौन होगा? जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, दैट विल बी स्टेबल इजिली। तो इन रिएक्टिविटी सीरीज इफ यू विल सी, K plus is more reactive and I minus is less reactive. In between these two, I minus is less reactive. So which will be preferred to adsorb? कौन आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे? I minus. So I minus ion is going to adsorb on DP particle. So DP particle get the negative charge. That's why it form the negative charged colloidal solution. फिर से देखिए, फर्स्ट केस है AgNO3 is added in Ki. AgNO3 को Ki में ऐड किए, so AgNO3 will be added in Ki, so AgNO3 will be act as solute, so it will be present in less amount and Ki will be solvent. So AgNO3 का 50 पार्टिकल अगर इमेजिन कर लेते तो Ki का उससे कुछ पार्टिकल ज़्यादा ही होगा, तो 70 मान लिया। So 50 AgNO3 will react with 50 Ki, 50 AgNO3 50 Ki से रिएक्ट किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनाया AgI एंड KNO3। AgI इज DP पार्टिकल, AgI कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा। नाउ उसमें बचा क्या? 20 Ki बच गया। दैट 20 Ki will be broken down into 20 K plus and 20 I minus. Now AgI will be adsorb
the less reactive one on its surface out of these two ion, AgI इन दोनों आयन में से जो less reactive उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जो less reactive होगा that will be absorbed easily, जो more reactive होगा that will be not absorbed easily because their reactivity will be more, so movement will be more. So I minus will be absorbed on AgI, so it give the negative charge, ठीक है, colloidal solution. नाउ सी व्हाट इज रिटन। अगर ये समझ में आया, बस यही लॉजिक है कि वहां पे जो दो आयन प्रेजेंट है उसमें से कौन जाके एब्जॉर्ब होगा, एंड दैट विल बी द चार्ज। नाउ सी, when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution, then precipitate silver iodide, जो AgI बना था वो Dp हो गया, it adsorb iodide ion from the DM, वो DM में से कौन सा आयन एड्जॉर्ब किया, I माइनस, K प्लस और I माइनस बचा था, I माइनस एड्जॉर्ब किया, एंड इट विल गिव द निगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। ये पहला केस था। नाउ सेकेंड केस, अब इसी प्रोसेस को रिवर्स करें, फिर से वही लॉजिक लगाइए। नाउ व्हेन Ki इज एडेड इन AgNO3, Ki को AgNO3 में ऐड किए, सो दिस टाइम AgNO3 विल बी मोर एंड Ki विल बी लेस। अब इस समय AgNO3 का अमाउंट ज़्यादा होगा, Ki का कम होगा, Ki इज सॉल्यूट एंड AgNO3 इज सॉल्वेंट। सो नाउ अब Ki 50 हो गया एंड AgNO3 जो हो गया वो आपका 70 हो गया। नाउ 50 विल बी रिएक्ट विथ 50, तो फिर से वही होगा Ki प्लस AgNO3, तो इस समय लिमिटिंग रिएजेंट Ki हो जाएगा, सो 50 रिएक्ट करेगा, सो इट विल फॉर्म द सेम प्रोडक्ट 50 AgI एंड 50 KNO3, 50 AgI बनेगा, 50 KNO3 बनेगा, लेकिन यहाँ बचेगा क्या, वहाँ Ki बचा था, हियर व्हाट विल बी लेफ्ट 20 AgNO3, यहाँ पे 20 AgNO3 बचेगा, वहाँ Ki बचा था, सो दिस विल बी ब्रेक इनटू 20 Ag प्लस एंड 20 NO3 माइनस। तो अब सिल्वर आयोडाइड जो है दैट विल बी चूज फ्रॉम दिस टू आयन, वहां पे K प्लस I माइनस था तो उसने चूज किया I माइनस, यहाँ पे Ag प्लस और NO3 माइनस है, सो द लेस रिएक्टिव विल बी Ag प्लस, एज यू नो सिल्वर इज प्रेजेंट इन लोअर प्लेस इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इन दोनों में लेस रिएक्टिव कौन होगा, Ag प्लस होगा, सो यहाँ से ये क्या चूज करेगा, Ag प्लस, Ag प्लस आएगा मीन्स कैटायन आएगा, तो ये कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। सो फिर से इफ Ki is added in AgNO3 then it form the silver iodide precipitate, and silver iodide precipitate adsorb on its surface the silver ion, वहां पे सिल्वर आयोडाइड एड्जॉर्ब कर रहा था I माइनस को, यहाँ पे एड्जॉर्ब कर रहा है Ag प्लस को, दैट्स व्हाई वहां पे निगेटिव CS बन रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव CS। इज डिपेंड ऑन द आयन की विच टू आयंस आर प्रेजेंट एंड विच वन इज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस, दैट इज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। सो सी द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है इसको भी देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन इज सेइंग कि हाउ इवर, ठीक है, Ki is added to AgNO3 solution then positive salt is formed due to adsorption of Ag plus। जब Ki को AgNO3 में डालते हैं तो Ag प्लस एड्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि DM में Ag प्लस NO3 माइनस था, उनमें से Ag गया, और जब AgNO3 को Ki में डालते हैं तब I माइनस एड्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि Ki और K प्लस और I माइनस है, तो I माइनस एड्जॉर्ब हो रहा है, तो दे रहा है निगेटिव। सो दिस इज द रीजन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि when silver nitrate solution is added in Ki then it form positive colloidal solution, but when potassium iodide is added in silver nitrate then it form negative colloidal solution। why, तो colloidal solution वही है, both the colloidal solution are AgI, but it is having the adsorption of I minus, that's why negative, and it is having the adsorption of Ag plus, that's why it is positive। I think it is clear। so same is here, दो केस इसमें भी। सेकेंड केस, व्हेन FeCl3 इज एडेड इन एक्सेस हॉट वाटर, जब FeCl3 को एक्सेस हॉट वाटर में ऐड करते हैं तब ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, और वहां पे डिस्पर्जन मीडियम में Fe3+ प्रेजेंट होता है,
that Fe3 plus is adsorbed, that's why it is giving the positive CS. But when FeCl3 is added in NaOH, यहाँ पे वाटर में ऐड किए हैं तो पॉजिटिव बना है, क्योंकि वाटर में ऐड करने पे Fe3 प्लस आयन को एडजॉर्ब कर रहा है। Fe2 प्लस नहीं, Fe2 प्लस रिएक्टिव होता है, Fe3 प्लस लेस रिएक्टिव होता है। बट जब इसी FeCl3 को NaOH में किए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में किए, सो फिर से सेम कोलाइडल सोल्यूशन बनाया, लेकिन दिस टाइम इट इज फॉर्म निगेटिव ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयन। सो ये वाला केस उतना नहीं आता है। वाई? क्योंकि इसमें जो DM है वो दोनों अलग अलग हो जा रहा है, इसमें हॉट वाटर, इसमें NaOH है, बट इसमें एवरीथिंग इज सेम। इसीलिए ये ज़्यादा पूछता है कि सिल्वर नाइट्रेट को Ki में मिलाएं तो निगेटिव क्यों बनता है, और Ki को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएं तो पॉजिटिव क्यों बनता है। और यहाँ पूछेगा व्हेन FeCl3 is added in hot water, excess hot water, then which type of colloidal solution will be formed, then positive। और या तो पूछेगा why positive is formed, तो आपको कहना है ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3 प्लस आयन, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3 प्लस आयन। बट व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड इन NaOH, then why it form negative? Due to preferential adsorption of OH minus। So this is the reason of charge कि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसे आता है, that is due to preferential adsorption। दो प्रूफ भी है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और एक्सप्लेनेबल रीजन यही है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। नाउ इसी से रिलेटेड दो और टर्म है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल, दीज आर द टू टर्म रिलेटेड विद द चार्ज टॉपिक। ये चार्ज टॉपिक से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ ये आता है व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो हेल्महोल्ट्ज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नाम में आपको बता रहा है, डबल लेयर मतलब टू लेयर, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अभी आपने देखा कि एनी वन टाइप ऑफ आयन इज कम्स एंड एडजॉर्ब ऑन डीपी सरफेस। एक टाइप का आयन डीपी के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, इट मीन्स डीपी इज नाउ चार्ज। तो डीपी के ऊपर एक चार्ज लेयर आ गई। व्हाट हैपन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आयन, जैसे अभी आपने देखा कि I माइनस एडजॉर्ब हो गया तो K प्लस कहाँ गया, वो भी तो उसी में था। या अगर सेकेंड केस देखते हैं तो Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया तो NO3 माइनस कहाँ गया, वो भी तो उसी DM में था। तो वन टाइप ऑफ आयन इज एडजॉर्ब ऑन DP एंड अनदर टाइप ऑफ आयन इज अट्रैक्टेड बाय दिस एडजॉर्ब आयन, क्योंकि आपको मालूम है अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। तो एक टाइप का आयन ये क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा, और दूसरे टाइप का उसका अपोजिट वाला आयन जो होगा वो इसके पास आकर के अरेंज हो जाता है। और फिर ये किस में हो गया, DM में। तो आई कैन से मीन्स आई वांट टू से कि एक टाइप का आयन DP पे एडजॉर्ब होता है, दूसरे टाइप का आयन DM में प्रेजेंट रहता है। मीन्स एक टाइप का आयन DP ने चूज कर लिया, दूसरे टाइप का आयन DM में ही है, और इस तरह से DP पे एक चार्ज हो जाता है और DM पे एक चार्ज हो जाता है। सो ड्यू टू अपोजिट चार्ज ऑन DP एंड DM, ठीक है, अपोजिट चार्ज ऑफ DP एंड DM, दे आर होल्ड टुगेदर, वे एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल। कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी का रीजन चार्ज है, याद रखिएगा। हाउ, व्हाट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, चार्ज। अब चार्ज कैसे है, बिकॉज DP and DM both are containing the opposite charges and due to opposite charges they are hold together। वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, बस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं। इसमें से जो DP के ऊपर चार्ज होता है डेट इज एडजॉर्ब, वो एडजॉर्ब होता है, उसके सरफेस पे चिपका होता है। लेकिन DM में जो चार्ज होता है वो चिपका नहीं होता है, डेट इज मूविंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर मूव करता रहता है। तो इसी को कहा जा रहा है कि इन अ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन की बात हो रही है। अब मोस्टली लायोफोबिक की हम पहले बता दें कि आपके सिलेबस में लायोफोबिक की केवल है। सो इन अ कोलाइडल सोल्यूशन DP particle is surrounded by two opposite charged layer
डीपी पार्टिकल जो होता है, जिसको कोलाइडल पार्टिकल भी कहते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय टू अपोजिट चार्ज लेयर। एक तो जो उसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ और दूसरा जो बचा वो उसके आसपास अरेंज हो जाएगा, बिकॉज सो डीपी पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल भी कहते हैं, इज सराउंडेड बाय टू अपोजिट चार्ज्ड लेयर, टू अपोजिट चार्ज्ड लेयर या अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रिकल लेयर। ठीक है, दीज टू अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रिकल लेयर्स आर कंबाइनली कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये बात हेल्महोल्ट्ज ने बतलाई कि डीपी के चारों तरफ दो लेयर होती है अपोजिट चार्ज की, तो इसको कहा गया हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इन दिस हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, that charged layer which is adsorb on surface of DP, जो डीपी के सरफेस पे एडजॉर्ब होती है आयंस के थ्रू, दैट आर कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, क्योंकि वो उस पर चिपकी हुई है, वो डीपी जहां जहां जाएगा उसके साथ जाएगी। एंड द सेकेंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ दिस फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर के बाहर जो लेयर होती है, सेकेंड जो बचा आयन है जो डीएम में है, मूव कर रहा है हियर एंड देयर, दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो इधर इधर मूव करते रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मोबाइल लेयर और मूवेबल लेयर। सो फिर से देखिए, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का डिफिनीशन आप क्या कहेंगे? In a colloidal solution, the colloidal particle or DP particle is surrounded by two opposite charged electrical layer. These two opposite charged electrical layer are combinedly called Helmholtz electrical double layer. In this Helmholtz electrical double layer, the one layer which is adsorbed on the surface of DP particle, that is called fixed layer, and the next layer which is present around the fixed layer, that is called mobile layer. ठीक है, और डिफ्यूज लेयर, उसको मोबाइल लेयर या डिफ्यूज्ड लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एंड इसके बाद आप डायग्राम बना देंगे, डीपी पार्टिकल, डीपी पार्टिकल के चारों तरफ कोई एक टाइप का चार्ज और उसके अराउंड दूसरे टाइप का। सो दिस इज the first one positive and second one negative, or you can draw dp के around negative and then after positive. So if dp, अब याद रखिएगा मोबाइल लेयर से मतलब नहीं है, फिक्स्ड लेयर इज द चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फिक्स्ड लेयर अगर पॉजिटिव है तो कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है, फिक्स्ड लेयर नेगेटिव है तो कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल? जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, सो फिर से वही चीज, in a colloidal solution, dp particle is surrounded by two opposite charged layer, the fixed layer and the mobile layer. The potential difference present between these two layer is called electrokinetic potential और zeta potential. फिर से सुनिए, what is, आप हेडिंग लेंगे electrokinetic potential or zeta potential, then what will be its definition? The potential difference which present between or arises between the fixed layer and mobile layer, ठीक है, of Helmholtz electrical double layer is called electrokinetic potential और zeta potential. zeta potential previous year last pre board में भी आया था, डिफिनीशन केवल आता और कुछ नहीं। so this is zeta potential और electrokinetic potential. so after this charge is over, चार्ज कौन कौन सा होता है, चार्ज आने का रीजन क्या है, explanation of preferential adsorption, then Helmholtz electrical double layer and zeta potential or electrokinetic potential. These topics are present in charge. Now next, the next property is electrophoresis. In your NCERT book it is given only electrophoresis, but you will write electrophoresis and electroosmosis, two terms are here.
इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस दो टर्म हैं, आप दोनों लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज द टर्म गिवन टू द मूवमेंट। ये मूवमेंट को टर्म दिया गया है, ठीक है। अब ये टर्म आया कैसे, तो आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज चार्ज्ड। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है चार्ज्ड होता है। देन साइंटिस्ट हैव स्टार्ट टू फाइंड कि विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन विच कोलाइडल सॉल्यूशन, किस कोलाइडल सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है, ये पता करने के लिए दे हैव प्रिपेयर्ड एन apparatus which you can see on screen। आपको ये सामने दिख रहा है, ठीक है। वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर? एनीवन प्लीज टेल मी, एनीवन? गौरव, अरुण, अंकित, एनीवन प्लीज? अभिनव? Yes, sir, clear. Okay, thank you. Now see, scientists have started to find a charge on colloidal solution। उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नहीं किया था, they have started to find a charge कि चार्ज पता कैसे करें। तो चार्ज कैसे पता होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट दे हैव डन, दे हैड प्रिपेयर्ड दिस apparatus, दिस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब का apparatus इन्होंने क्या किया, बनाया। In this apparatus they had attached a platinum electrode। ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के, both the electrodes are platinum electrode at two terminals, ठीक है। अब इन्होंने they had filled the colloidal solution, जिसका चार्ज पता करना था, उस colloidal solution को इस apparatus में फिल किया और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जिससे कि इट्स बिकम्स स्लाइटली लाइटर, थिकनेस थोड़ी कम हो जाए, सो मूवमेंट कैन बी ईजी, मूवमेंट ईजी हो जाए। तो उन्होंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया जिससे वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम हो जाए, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा थिक होता है तो उसमें मूवमेंट थोड़ा कम होगा। सो थोड़ा सा पानी ऐड किया एंड देन आफ्टर सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, when they have started to use the microscope or another apparatus to see, then they have got the dp particles are start to move towards one electrode। dp पार्टिकल एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे। अब उस इलेक्ट्रोड का चार्ज देखें कि dp पार्टिकल अगर कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो कैथोड का मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स दे मस्ट हैव द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को उन्होंने कहा पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड इफ डीपी पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड, डीपी पार्टिकल अगर एनोड की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब वो एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स द पार्टिकल मस्ट हैव द निगेटिव, बिकॉज एज यू नो इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्ज मूव टूवर्ड्स या चार्ज मूव टूवर्ड्स देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो अगर वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो कैथोड निगेटिव होता है, तो कहा गया है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे इसलिए निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा आपने देखा था, या एनोड रे कैथोड रे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किए तो बेंड हो गया कैथोड की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज था, एनोड की तरफ तो निगेटिव। तो सेम इज हियर, इफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड्स कैथोड तो इसका मतलब वो माइनस की तरफ जा रहे हैं, सो दे मस्ट हैव द पॉजिटिव चार्ज, तो कहा गया ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। और अगर एनोड की तरफ जा रहे हैं तो दे मस्ट हैव द निगेटिव चार्ज, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो निगेटिव चार्ज इनके पास होगा, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड निगेटिव CS। इन दिस डायग्राम NCERT बुक 3 तरह की आपके मार्केट में है। सो कुछ आई एम नॉट सेइंग कि सभी NCERT में, NCERT बुक 3 तरह की मार्केट में है। कुछ NCERT बुक में ये गलत है, आपको एनोड इधर लिखना है और कैथोड इधर लिखना है, साइन चेंज नहीं करना है। रिमेंबर दिस, साइन सही है, केवल आपको एनोड कैथोड रिवर्स कर देना है। प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, बिकॉज इन दिस वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ नॉट द गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल नहीं है कि एनोड मतलब निगेटिव कैथोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ पे जो प्रिंटिंग है, हो सकता है आपके पास जो बुक हो उसमें प्रिंटिंग सही हो। 3 तरह की बुक मार्केट में है, NCERT की ही 3 तरह की बुक है। कुछ बुक में सही दिया हुआ है कि एनोड मतलब पॉजिटिव कैथोड मतलब निगेटिव, और कुछ बुक में ये गलत प्रिंटिंग दी हुई है। तो इफ
अगर आपके बुक में प्रिंटिंग गलत है तो आप ये एनोड को इधर लिख दीजिए और कैथोड को उठा करके इधर लिख दीजिए, साइन चेंज नहीं करना है, बाकी एवरीथिंग इज ओके। नाउ तो ये प्रोसेस शुरू हुआ टू फाइंड द चार्ज। अब चार्ज जब फाइंड करने लगे तो उन्होंने देखा कि डीपी पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं। तब उनके दिमाग में आया कि जब समथिंग इज मूविंग दिस साइड और उसमें दो चार्ज हैं तो दूसरा वाला चार्ज भी मूव कर रहा होगा अपोजिट साइड में। तो उन्होंने क्या किया, आपको भी बताया गया कि एक चार्ज डीपी पर होता है, दैट इज फिक्स्ड लेयर, और दूसरा चार्ज डीएम में होता है, दैट इज मोबाइल लेयर। इफ डीपी इज मूविंग तो डीएम भी मूव कर रहा होगा, बट डीपी पार्टिकल साइज इज लार्जर तो हम इसको इजीली देख ले रहे हैं, बट डीएम साइज इज स्मॉलर तो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे हैड ब्लॉक्ड द मूवमेंट ऑफ डीपी पार्टिकल बाय द यूज ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन। कोई सुटेबल मेम्ब्रेन जैसे आपको बताया गया है उसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस में और डायलिसिस में, कि जिससे डीपी पार्टिकल क्रॉस नहीं होते हैं, दैट इज एनिमल ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन सीट, कोई भी एक, या अल्ट्रा फिल्टर पेपर ले लीजिए, अल्ट्रा फिल्टर पेपर ही, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यहाँ लगा दिए इसके दोनों ट्यूब के टर्मिनल पे। सो नाउ डीपी विल नॉट मूव एनी साइड, डीपी किसी साइड नहीं जाएगा। नाउ आफ्टर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी ओनली डीएम कैन क्रॉस दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर। आपको पता ही है कि डीएम जा सकता है, तो डीएम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से क्रॉस करेगा एंड इट विल मूव देयर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। तो डीपी पार्टिकल का जब मूवमेंट नहीं होगा सो डीएम का मूवमेंट सीन होगा। तो डीएम के मूवमेंट को देखने के लिए डीपी पार्टिकल के मूवमेंट को उन्होंने स्टॉप किया, देन दे हैव गॉट कि यस dp particle is also moving towards the opposite charge electrode and dm particle is also moving towards the opposite charge electrode। तब उनका कॉन्सेप्ट आया कि dp और dm दोनों पे अपोजिट चार्ज होते हैं, that's why they are held together and that's why they are stable, so charge is responsible for stability। और इसके बाद they have given the two term electrophoresis, electroosmosis। so these all information what I had given to you process वगैरह, this will not come, ये नहीं आएगा। the question will just come what is electrophoresis and what is electroosmosis। then electrophoresis में आपको क्या लिखना है, दो मूवमेंट बताए हैं, एक डीपी का एक डीएम का। जो डीपी का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है और जो डीएम का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है। तो आपको क्या लिखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, व्हेन a colloidal solution placed in electric field, जब कोई colloidal solution इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, its dp particle is moving towards their opposite charge electrode। इसका dp particle और colloidal particle अपने opposite charge electrode की तरफ मूव करता है and this movement of colloidal particle or dp particle under an applied electric field is called electrophoresis। इलेक्ट्रिक फील्ड में डीपी पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है दैट मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीपी पार्टिकल का, केवल पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन का नहीं, केवल डीपी पार्टिकल का या केवल कोलाइडल पार्टिकल का। सो फिर से देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस यू विल राइट व्हेन a colloidal solution placed in electric field, then the dp particle start to move towards their opposite charge electrode or colloidal particle start to move towards their opposite charge electrode। this movement of colloidal particle or dp particle under an applied electric field is called electrophoresis। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो देखिए वो कैथोड की तरफ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हो सकता है ये सही हो तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए कि पॉजिटिव वाला निगेटिव कैथोड, मतलब कैथोड निगेटिव होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। एंड निगेटिव चार्ज होगा तो एनोड की तरफ जाना चाहिए, तो निगेटिव है तो एनोड की तरफ, मतलब एनोड पॉजिटिव होगा और एनोड यहाँ पे निगेटिव दिख रहा था। यू कैन क्लियर योर डाउट फ्रॉम हियर ऑल्सो कि यहाँ पे एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव है। अब आया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हेडिंग लेंगे और कहेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हेन the movement of dp particle is prevented by suitable means। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के समय अगर हम डीपी पार्टिकल की मूवमेंट को किसी तरीके से रोक देते हैं then it is observed that
the DM particle is also moving towards their opposite charge electrode. DM particle भी अपने opposite charge electrode की तरफ move कर रहे हैं. This movement of DM particle towards their opposite charge electrode, DM पार्टिकल के अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने के जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट ऑफ फिनोमिनॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. सो आपको अगर कुछ नहीं आए तो यू कैन राइट जस्ट दिस वन कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द मूवमेंट ऑफ dispersion medium in an applied electric field is called electroosmosis. That is the last option. कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब, अदरवाइज आप इतना लिख दीजिए कि मूवमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. एंड इन बोथ द केस, दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा या तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आएगा. इन बोथ यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम को बना देंगे. सो आफ्टर दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज